Better comparison of acidic strength. Comparison of acidic strength. So, beta, suppose if we have ethanoic acid, this is ethanoic acid, and versus chloroethanoic acid. This is chloroethanoic acid. तो बेटा अब इसमें देखें कि वी डिसाइडेड द अदर डे कि दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो सी डबल बॉन्ड ओ अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये दोनों कंपाउंड्स में है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, बोथ हैव सी डबल बॉन्ड ओ। तो दैट इज वाई सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि दोनों में है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। What difference we see is के the one on the right hand side, this carboxylic acid में we have Cl atom, and we know कि Cl is the electronegative atom. Cl is electronegative atom, more electronegative atom. Okay, Cl has greater electronegativity, and all electronegative atoms are electron withdrawing groups. So Cl has electron withdrawing effect, or electron withdrawing effect cause negative inductive effect. Cl will cause electron withdrawing effect. So what happens, beta, due to this electron withdrawing effect, this Cl will draw the electrons from all the bonds of in surroundings. तो जब Cl इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा तो what happens कि ये जो OH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर है, that bond pair will become closer to the oxygen atom, and oxygen becomes more partial negative and hydrogen becomes more partial positive, right? Compared to this bond, beta, if you compare bond polarity of these two bonds, तो ये वाला जो OH bond है, this has less bond polarity compared to this very bond. ये वाला bond अगर हम देखें तो the OH on the right hand side has more bond polarity, और ये bond polarity किस वजह से है? Due to Cl atom का more bond polarity. Cl electron withdrawing group है, तो it cause negative inductive effect, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, नेगेटिव इफेक्ट की वजह से व्हाट हैपेंस, बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ OH increases, greater bond polarity, greater bond polarity of OH. Or when bond polarity is greater, beta, then dissociation will be greater. So greater dissociation of OH bond, greater dissociation of OH bond. और जब डिसोसिएशन ज्यादा होगी, सो वी विल से कि मोर एसिडिक. So chloroethanoic acid is more acidic, or it has greater Ka value, okay, compared to this ethanoic acid, which has less Ka value compared to chloroethanoic acid. जी बेटा, any question? If you have any question, you can ask. No question, beta? नहीं सर। Okay. So, beta, next thing is इसकी बेटा पिक्चर ले लें. इसी पिक्चर ले लें बेटा. और बेटा नेक्स्ट थिंग इज दिस कॉन्सेप्ट. If you have chloroethanoic acid, this is chloroethanoic acid, beta. Then we have dichloroethanoic acid. This is dichloroethanoic acid. And then we have trichloroethanoic acid. So, beta, what do you think? इसमें कौन सा carboxylic acid has more Ka value? इन तीन एसिड्स में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है?
लोग बेटा ये नीचे वाले जो ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड है, इसमें देर आर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. So electron withdrawing effect will be much greater here. So bond polarity in this OH bond will be much greater compared to bond polarity here in this OH bond. Why? Because ऊपर वाले में there is only one electronegative atom. नीचे वाले में there are more electronegative atoms. So more Cl atoms cause greater electron withdrawing effect. Electron withdrawing effect. So what happens beta due to this greater electron withdrawing effect से होगा क्या? Greater bond polarity of OH, and thus greater dissociation of OH. Okay. So जब हम इस तरह क्लोरोएथेनोइक से ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड तक आए तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. Acidic strength will increase. Right? Beta, organic chemistry में कि how would you convert ethanoic acid? This is ethanoic acid. So how to convert this ethanoic acid to trichloroethanoic acid? तो आप एक्सेस क्लोरीन आपके पास हो, व्हाट बेटा, एक्सेस क्लोरीन और यूवी लाइट में व्हाट हैपेंस, इनिशियली यू विल गेट क्लोरोएथेनोइक एसिड. दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूशन प्लस HCl बनेगा. व्हाट हैपेंस, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है, सो द रिएक्शन विल कीप गोइंग ऑन. तो मोनोक्लोरिक मोनोक्लोरोएथेनोइक एसिड से फिर क्या फॉर्म होगा? डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड फॉर्म होगा. एंड देन, और साथ में बाय प्रोडक्ट विल बी HCl. और देन बेटा व्हाट हैपेंस कि क्लोरीन चूंकि एक्सेस में है तो, और यूवी लाइट भी है, तो यू गेट ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड. So these chloroethanoic acids are substitution products of ethanoic acid plus HCl will be the product. तो ये कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं बेटा? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं. व्हाट दे आर? दे आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. इसमें ये जो ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड है, दिस इज मोर एसिडिक and this one is less acidic. Right? बेटा ये डिस्कशन थी, इसकी पिक्चर ले लें, बाद में फिर इसको लिख लें. जी बेटा इसकी पिक्चर ले लीजिए. ओके बेटा. बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस वन. वी नो के alkyl R is electron donating group. Alkyl R is electron donating group. Right? So what happens if we compare relative acidic strength of ethanoic acid with propanoic acid? This is propanoic acid. तो बेटा दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रेटर द चेन of carbon atoms or more carbon atoms in alkyl group will cause greater electron donating effect. ये अब दिस इज इथाइल एंड इथाइल है एंड दिस इज मिथाइल, दोनों एल्काइल हैं और दोनों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा. दे विल कॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. लेकिन फिर किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ग्रेटर होगा? तो इथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट विल बी ग्रेटर. Ethyl has greater
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, डोनेटिंग इफेक्ट। और बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज कॉज्ड। और बेटा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा कि द बॉन्ड पोलैरिटी विल डिक्रीज, राइट, क्योंकि ये दिस इथाइल इज पुशिंग दिस बॉन्ड पेयर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये बॉन्ड पेयर सेंटर की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि इथाइल इसे पुश कर रहा है, पुश बैक कर रहा है। ऑक्सीजन इज ड्रैगिंग दिस बॉन्ड पेयर, ऑक्सीजन इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ड्रैग कर रहा है, लेकिन जो एल्काइल है उसका अपोजिट इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड पोलैरिटी विल डिक्रीज, डिक्रीज इन बॉन्ड पोलैरिटी, डिक्रीज इन बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ OH, ऑफ OH। और बेटा बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज होने की वजह से डिसोसिएशन विल डिक्रीज, लेस डिसोसिएशन, ओके, लेस डिसोसिएशन ऑफ OH। सो इसका मतलब है जो प्रोपेनोइक एसिड है वो लेस एसिडिक है। एंड यू कैन ट्रेस वाइस वर्सा हेयर, वाइस वर्सा फॉर एथेनोइक एसिड, ठीक है। एनी कंफ्यूजन बेटा? नहीं सर। अच्छा, अब बेटा एक पॉइंट और है, वो आई वांट कि आप इस पे भी जरा फोकस रखें। बेटा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। बेटा ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भी कंपाउंड या जो भी पार्टिकल है वो अगर लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव का मतलब होता है मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी से लिंक्ड होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी से लिंक नहीं होती। लेस रिएक्टिव का मतलब है मोर स्टेबल। जैसे हम कहते हैं नोबल गैसेस आर स्टेबल, क्यों नोबल गैसेस स्टेबल हैं? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। और ये ध्यान में रखें कि जो भी कंपाउंड या पार्टिकल या आयन मोर रिएक्टिव होगा वो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ओके। तो अब मैं कार्बोक्सिलेट आयन को लेट से मैं कंपेयर कर, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन बेटा, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, राइट, ये। अब जब OH डिसोसिएट हो जाए तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, जिसको आप मेथनोएट, एथेनोएट, प्रोपेनोएट, ब्यूटानोएट, सो एंड सो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके मुकाबले में हमारे पास बेंजीन, सॉरी, फिनोल से जब H रिमूव हो जाए, फिनोल जब अपना प्रोटॉन दे दे तो ये फिनॉक्साइड बनता है, दिस इज फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। और लेफ्ट पे इज कार्बोक्सिलेट आयन, ओके। अब इसमें कॉन्सेप्ट बेटा ये है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो ये C डबल बॉन्ड O है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ग्रेटर है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये जो फिनाइल रिंग है, इस बेंजीन रिंग और फिनाइल रिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखता है, लेकिन C डबल बॉन्ड O का हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये याद रखें बेटा कि C डबल बॉन्ड O का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ग्रेटर है फिनाइल ग्रुप से या बेंजीन रिंग से, हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देन फिनाइल। फिनाइल बेटा ये बेंजीन ग्रुप को फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, ओके, और बेंजीन ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब सुने कि जब ये C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ना, ये शिफ्ट हो जाएगी C डबल बॉन्ड O की तरफ, तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी लेस रिएक्टिव हो जाएगा।
लेस रिएक्टिव इसलिए होगा, देखो इसने अपना प्रोटॉन डिसोसिएट किया हुआ है, H प्लस डिसोसिएट किया हुआ है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज में टेंडेंसी नहीं होगी प्रोटॉन को वापस पिक करने की, ये प्रोटॉन वापस पिक करने की लेस टेंडेंसी होगी। क्यों बेटा, क्यों लेस टेंडेंसी होगी? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड O अपनी तरफ ड्रैग कर रहा है। सी डबल बॉन्ड O का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये आयन फिर स्टेबल रहेगा। स्टेबल का मतलब है ये वापस H प्लस को पिक नहीं करेगा। तो दिस आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, इज मोर स्टेबल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर है। लेकिन ये फिनॉक्साइड आयन कार्बोक्सिलेट आयन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल इसलिए कि जो बेंजीन है वो लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखता है कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड O। तो जब ये नेगेटिव चार्ज लेस शिफ्ट होगा कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट, बेटा हम बात करें, तो यहाँ मोर टेंडेंसी होगी टू पिक दिस H प्लस। तो अगर ये फिनॉक्साइड आयन H प्लस को पिक कर रहा है तो इसका मतलब है ये मोर रिएक्टिव है। तो कार्बोक्सिलेट और फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलेट इज मोर स्टेबल। एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन? नहीं सही। ओके बेटा, देखिए अब आप मुझे इसका आंसर करें कि इन दो आयंस में व्हाट यू थिंक कि विच वन इज मोर स्टेबल। इफ आई से क्लोरो एथेनोएट, wait, chloroethanoate will be like this is chloroethanoate, और दूसरी तरफ सिर्फ एथेनोएट आयन। व्हाट यू थिंक इन दोनों आयंस में कौन सा आयन मोर स्टेबल है? क्लोरोएथेनोइक। क्लोरोएथेनोएट मोर स्टेबल है। देखो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, एक सी डबल बॉन्ड O और एक ये क्लोरो। तो ये नेगेटिव चार्ज अच्छा खासा स्प्रेड हो जाएगा। जबकि राइट साइड पे देखो तो देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज सी डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट पे मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। तो इस वजह से ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा या O पे नेगेटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाए तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। नेगेटिव चार्ज की वजह से ही तो इसने अटैक करना है दूसरे पॉजिटिव पार्टिकल पे। तो जब नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। दिस वन, द वन ऑन द राइट साइड, इज लेस स्टेबल। गॉट इट? इसके कंपैरिजन में बेटा आप ये देखें कि अगर हमारे पास हो एथेनोएट आयन वर्सेस प्रोपेनोएट आयन, ये प्रोपेनोएट आयन है। अब इसमें एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो दिस मिथाइल ग्रुप, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है लेकिन लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, क्योंकि कार्बन चेन छोटी है। जबकि इथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ग्रेटर है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो बेटा जब ये इथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है तो व्हाट हैपेंस टू दिस नेगेटिव चार्ज? ये ग्रेटर हो जाएगी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एक तो इसका अपना चार्ज है नेगेटिव, दूसरी तरफ इथाइल से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस O की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो जब जितना O पे चार्ज बढ़ेगा ये रेडिली H प्लस को पिक करेगा। ठीक है, ये H प्लस को रेडिली पिक करेगा क्योंकि ये हैविली नेगेटिवली चार्ज है ये सेंटर। तो जब ये H प्लस को रेडिली पिक करेगा तो इसका मतलब है फिर ये स्टेबल ना हुआ ना। ये स्टेबल ना हुआ यानी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, H को इसको पिक करना पड़ रहा है। तो ये दिस इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल का मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इट विल बी फोर्स टू पिक H प्लस बैक।
तो इसके लेस स्टेबल होने की वजह से ये प्रोपेनोइक एसिड लेस एसिडिक है, राइट। वी डिसाइडेड अबव, ऊपर हमने डिसाइड किया कि एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड लेस एसिडिक है देन एथेनोइक एसिड, उसमें ये स्टेबिलिटी का रोल भी हो सकता है। तो बेटा ये हमारा डिस्कशन थी और ये टॉपिक भी एंड हो गया। दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। द टॉपिक इज एंडेड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में द लास्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो पढ़ेंगे, वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ओके बेटा, सो दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। सर, आप बेंजीन और कार्बोक्सिलिक